Hello everyone, welcome to the new lecture of Fluid Mechanics 2. In previous lecture we have started a new topic that is most economical section, and in previous lecture we have studied about the basic introduction of most economical section. Okay, we have discussed what is most economical section, how we can provide most economical section for rectangular channel. Okay, we have covered the topic for rectangular channel, and the most economical section is applied for three types of channel shape, that is rectangular channel, trapezoidal channel and triangular channel. So in previous lecture we have covered about the rectangular channel. So today we will study about the most economical trapezoidal channel. It is also very important, most economical trapezoidal channel. How the what are the main two conditions of most economical trapezoidal channel, and we will see one numerical based on this. After that we will see the triangular channel also in today's lecture. Okay, so let's start. पिछले लेक्चर में हमने रेक्टेंगल चैनल के बारे में पूरा कवर कर लिए थे. आज हम देखेंगे कि ट्रैपेजॉइडल चैनल जो है, ठीक है, ट्रैपेजॉइडल चैनल में कौन सी वो दो कंडीशन आती है और किस तरीके से ट्रैपेजॉइडल चैनल के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ये भी बहुत ईजी है, इवन ये रेक्टेंगुलर से भी ईजी है. अगर आप इसकी दो कंडीशन याद हो जाएगी तो ये इट इज़ मोर ईजियर देन द रेक्टेंगुलर चैनल. ओके, सो लेट्स सी मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रैपेजॉइडल चैनल. ओके, तो जैसे हमने पिछली बार देखे थे और मैंने आपको बताया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इज P should be minimum. What is P? Parameter. Okay, we have discussed all these things in previous lecture. P is parameter. Okay, हमने पूरा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं. अब सिर्फ हमको थोड़ा सा आगे मूव करना है. तो ट्रैपेजॉइडल चैनल को हम देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे. सो द बेसिक कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रैपेजॉइडल चैनल इज P should be minimum. P is nothing but parameter. Okay, should be minimum, and as we all know, for minimum P we should have maximum discharge. The most economical section gives maximum discharge for minimum parameter. Okay, so this is the basic condition: maximum discharge, minimum parameter. So P should be minimum. You have to remember this. So how will we find out the basic two conditions for most economical section? See how we will solve this. First of all, as you all know, you have to find out the area. The formula of area for trapezoidal channel is B plus ZD into D. Okay, we have already determined this formula in the first lecture of this open channel flow. Okay, this is the basic formula of trapezoidal section. So B plus ZD into D. This is the basic formula of area. Okay, remember this, B plus ZD into D. So we will make one. We can solve it like this. We can multiply D to the whole this bracket thing. So D into B and D into ZD also. So BD plus ZD स्क्वायर. हम क्या करेंगे, ये जो D है इसको पूरे ब्रैकेट से इससे मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा BD प्लस ZD स्क्वायर. ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है एरिया ऑफ फ्लो का, इतना तो आपको पता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने जैसा पिछली लेक्चर में किए थे, पिछली रेक्टेंगुलर सेक्शन में किए थे, बी के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे. पिछले इसमें भी हमने किए थे, बी के फॉर्म में लिखे थे. तो बी के फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे, बी को अगर हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, ये जो डी है ये अपॉन में चला जाएगा ए के. तो क्या हो जाएगा ए डिवाइड बाई डी माइनस, अब अगर ये डिवाइड में जा रहा है डी तो वो इसके भी डिवीजन में आएगा. तो क्या हो जाएगा जेड डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी. ठीक है ना, ये तो बेसिक मैथमेटिकल रूल है. तो हमको बी का इस तरह से इक्वेशन मिलेगा. ये इक्वेशन को हमने बी के फॉर्म में लिखी. नाउ यू कैन सी हियर, ये जो डी है एक डी कैंसिल हो जाएगा. तो किस तरह लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू ए माइनस ए डिवाइड बाई डी माइनस जेड डी. इस तरह लिख सकते हैं ना. तो हम क्या करेंगे, इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे. तो हमने बी का जो फर्स्ट इक्वेशन बना लिया वो इस तरीके से, जैसा प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस रेक्टेंगुलर सेक्शन में हमने किए वही चीज़ हम इसमें करेंगे. ठीक है, इसमें वही करेंगे, हम बी के फॉर्म में इसको लिख लेंगे एरिया के फॉर्मूले को. ठीक है, तो इस तरह हमारे को ये इस तरीके से बी के फॉर्म में मिल गया ना. नेक्स्ट चीज़ क्या किए थे हमने, उसमें भी पैरामीटर लिखे थे. तो इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये बी टोटल लेंथ होती है ना. तो ये बी, ये एक लेंथ का कितनी होती है लेंथ, डी अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर. ये भी हम पूरा देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में, पूरा चीज़ें ये सब देख चुके हैं हम, है ना. जब ओपन चैनल फ्लो का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें पूरी चीज़ मैंने आपको बता दिया था. तो ये जो लेंथ होती है हमने देखे थे, ये लेंथ कितनी होती है, डी अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, डी अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर. ये कैसी आई थी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पूरा डिटेल में.
तो ये एक की लेंथ कितनी हो गई, डी अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर। तो ये कितने हैं, स्लोपिंग साइड कितने हैं, 2 है। ये 2 स्लोपिंग साइड है प्लस ये बेस का, तो कितना हो जाएगा बी प्लस 2 डी, क्योंकि ये डी अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर एक साइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि 2 साइड है। कितना हो जाएगा बी प्लस 2 डी अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर, ये भी आपको पता है फॉर्मूला। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको क्या करना है, पी मिनिमम, पैरामीटर शुड बी मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू डी, क्योंकि अपॉन में क्या है, इसके डी है, ठीक है ना यहाँ पे, इसलिए हम इसको डी से डिफरेंशिएट करेंगे। और डी पी डिवाइड बाई डी पी क्यों लिखे, क्योंकि हमको पैरामीटर को मिनिमम करना है। तो हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या है, डी पी अपॉन डी डी इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक कंडीशन। ठीक है, ये जो डी पी है इसको हमको 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी मतलब ये वैल्यू, ये जो ब्रैकेट में हमने निकाली इक्वेशन 1 की, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारा पैरामीटर वाला है, सेम प्रोसेस है जो रेक्टेंगल में किए। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, p इज इक्वल टू बी प्लस 2 डी अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b की जगह क्या लिख देंगे आप, ये वाला फॉर्म। ठीक है, b की जगह हम लिखेंगे ए डिवाइड बाई डी, ए बाई डी माइनस जेड डी। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बाई डी माइनस जेड डी प्लस ये बाकी का जैसा का वैसा। b की जगह सिर्फ हम क्या लिखेंगे, ए बाई डी माइनस जेड डी, बाकी जैसा का वैसा इक्वेशन रहेगा पूरा। ठीक है, ए बाई डी माइनस जेड डी प्लस 2 डी अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इस पूरे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, और हमको क्या करना है, ये लगाना है डी पी डिवाइड बाई डी, क्योंकि वो कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, हमको ये कंडीशन यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो डी पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर है, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू डी। या इस तरह करेंगे, देखो विद रिस्पेक्ट टू डी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई डी स्क्वायर, मैं कल ही बता चुका हूँ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ठीक है, ए बाई डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा ये, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, माइनस ए बाई डी स्क्वायर। ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल रूल है। माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ क्या बचेगा, जेड। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे भी डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करने के बाद इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करे हमने तो इस तरीके से ये आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद ये फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये 0 के साइड में किसको भेज देंगे, ये ए माइनस ए बाई डी स्क्वायर माइनस जेड, इसको अगर हम इस साइड में इसको भेज देंगे, ठीक है, इस साइड में इसको भेज देंगे तो लेफ्ट साइड में इसको ट्रांसफर कर देंगे तो इक्वल, ये जो माइनस साइन है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बाई डी स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, है इस तरीके से फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे इसमें हम क्या कर सकते हैं और चेंज, देखो यहाँ पे ये जो ए है इसकी जगह हम क्या ये नहीं लिख सकते, जो हमने ए का बेसिक फार्मूला हमने बताया, मैंने आपको बताया जो बेसिक फार्मूला ए का क्या है, बी डी प्लस जेड डी स्क्वायर। तो हम ए की जगह पे, ये ए की जगह पे ये बी डी प्लस जेड डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का जो फार्मूला, तो हमने वही किया यहाँ पे, जो बेसिक है ए का फार्मूला उसकी जगह ए की जगह हम लिख देंगे बी डी प्लस जेड डी स्क्वायर। ठीक है, बाकी चीज़ जैसी की वैसी रहेगी, अदर थिंग्स विल रिमेन सेम, instead of only the a will change, you have to put bd plus zd square in place of a because it is a formula of area. So area का formula ये है ट्रापेजॉइडल को, हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये अपॉन में z के 1 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम z के z से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो बी डी प्लस जेड डी स्क्वायर, ठीक है ना, बी डी प्लस ये जेड डी स्क्वायर जैसे का वैसा, प्लस ये डी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेड डी स्क्वायर अपॉन में पूरा डी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है इसकी, तो इस तरीके से आ गया बी डी प्लस जेड डी स्क्वायर प्लस जेड डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आया कि नहीं आया बेसिक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे ये जेड डी स्क्वायर दोनों को ऐड किया करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जेड डी स्क्वायर। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, ये 2 को हम इधर ला लेंगे, 2 डी स्क्वायर में ला लेंगे। ठीक है, 2 को हम इधर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम इसको इधर डिनोमिनेटर में ला लेते हैं लेफ्ट साइड के।
तो क्या हो जाएगा, बी डी प्लस 2ZD² डिवाइड बाई 2D² इज इक्वल टू √1 + Z²। ये बन रहा है कि नहीं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन रहा है ना। इस तरीके से देखो आप यहाँ पे, अब इसको हम और चेंज क्या कर सकते हैं, तो इसके राइट साइड में देखो यहाँ पे इसको किस तरह हम लिख सकते हैं, इसमें से डी को कॉमन निकाल दिए, इस तरीके से डी को बाहर निकाल दिए, बी प्लस जेड डी हो गया 2ZD डिवाइड अपॉन में 2D² है इज इक्वल टू 1 + Z², ठीक है ना। तो ये डी डी आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया सिर्फ हमारे पास हमारे पास क्या बच रहा है, बी प्लस 2ZD डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू D√1 + Z²। इस तरीके से बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये जो डी है ये डी देखो कैंसिल हो गया, फिर इधर जो डी बचा हमने उसको राइट साइड में सेंड कर दिए, तो क्या हो गया फिर ये बी प्लस 2ZD डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू D√1 + Z²। अब इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा गया है ताकि आपको आसानी से एक चीज़ याद रहे कि ये जो कंडीशन नंबर 1 हमारी बनी, ये बन गई हमारी कंडीशन नंबर 1, ठीक है। दिस इज अवर कंडीशन नंबर 1। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बी प्लस 2ZD है, ये बी प्लस 2ZD है, ये क्या है, ये एक्चुअली आपकी टॉप बिट हो गई। तो इसको याद रखने के तरीके के हिसाब से हमने इसको कंडीशन नंबर 1 बनाया है, ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो ये जो बी प्लस 2ZD है ना, ये होती है टॉप बिट। मैं आपको दिखा देता हूँ, बी प्लस 2ZD जो होता है ना, ये देखो यहाँ पे ये जो टॉप बिट होती है हमने निकाल चुके हैं पहले भी, ट्रापेजॉइडल का जो टॉप बिट होती है वो कितनी होती है, बी प्लस 2ZD, ठीक है। और स्लोप कितना होता है, D√1 + Z²। तो अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो बी प्लस 2ZD एक टॉप बिट है, तो क्या हो गया, टॉप बिट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ये जो होती है D√1 + Z²। D√1 + Z², ये क्या थी, लेंथ ऑफ वन स्लोपिंग साइड, है कि नहीं। ये जो D√1 + Z² है, ये हमारी क्या है, एक लेंथ की, एक स्लोपिंग साइड की लेंथ है। देखो यहाँ पे ये जो लेंथ है इसकी कितनी है, D√1 + Z²। तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आसानी से आपको याद रहेगा टॉप बिट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन स्लोपिंग साइड, जो कि हमारी कंडीशन नंबर 1 है। तो ये आपको भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको आसानी से याद रखने के लिए आप कैसे याद रखो, टॉप बिट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन स्लोपिंग साइड। अगर आप इस फॉर्म में याद रखोगे तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तो ये बन गई हमारी कंडीशन नंबर 1 फॉर ट्रापेजॉइडल चैनल। आप देखते हैं सेकंड कंडीशन, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया था वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। देखो कंडीशन नंबर 2 जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, फॉर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जिसको हम बोलते हैं आर भी बोलते हैं ना, कल ही हमने देखे आर इज इक्वल टू एरिया अपॉन पैरामीटर, ये भी आपको पता है। अब एरिया ट्रापेजॉइडल क्या था, बी डी प्लस जेड डी स्क्वायर, ये भी आपको पता है। पैरामीटर का फॉर्मूला बी प्लस 2D√1 + Z², ये भी चीज़ आपको पता है। अब जो कंडीशन नंबर 1 हमने निकाले वो कंडीशन नंबर 1 क्या थी हमारी, ये देखो यहाँ पे बी प्लस 2ZD इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू D√1 + Z²। तो हम इसको 2 को इधर भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई, 2D√1 + Z² इज इक्वल टू बी प्लस 2ZD, है ना, यही कंडीशन नंबर 1 है हमारी। तो कंडीशन नंबर 1 को लिखने का यहाँ पे मीनिंग ये है कि हम इसका भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पैरामीटर जो है ट्रापेजॉइडल का उसका फॉर्मूला बी प्लस 2D√1 + ZD है, ठीक है ना, इतना तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम ये 2D√1 + Z², ये जो दिख रहा है आपको 2D√1 + Z², कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से किसके बराबर है, बी प्लस 2ZD, है ना, ये बी प्लस 2ZD के ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2D√1 + Z² है इसकी जगह हम लिख देंगे बी प्लस 2ZD। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो बी प्लस 2ZD, इसकी जगह हम लिख दिए बी प्लस 2ZD, जो कि कंडीशन नंबर 1 से मिला। तो हमने क्या किया, फिर इसको बी प्लस, यहाँ पे इसको चेंज किया तो क्या आ जाएगा, बी प्लस 2ZD, क्या हो जाएगा, बी बी यानी कि 2B + 2ZD, ठीक है। इस तरीके से आ गया। फिर पैरामीटर में हम अपने 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ZD। तो पैरामीटर का एक इक्वेशन बन रहा है नया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नया इक्वेशन बना इसको ये ओरिजिनल वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू बी प्लस जेड डी स्क्वायर, यानी कि इसमें भी हम क्या करेंगे, डी को बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस जेड डी डिवाइड बाई जो नया वाला हमारा फॉर्मूला आया पैरामीटर का, दैट इज 2 ब्रैकेट बी प्लस जेड डी। तो हमने क्या किया, 2 ब्रैकेट बी प्लस जेड डी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बी प्लस जेड डी दोनों सेम है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो सिर्फ आर का इक्वेशन क्या बना, डी बाई 2,
बिल्कुल सिमिलर है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी आर इज इक्वल टू डी बाई टू था। ठीक है, सो दिस इज अवर कंडीशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन नंबर 2 बन गई ट्रापेजॉइडल में। ठीक है, फॉर ट्रापेजॉइडल। ठीक है, ट्रापेजॉइडल की दो कंडीशन देखो कौन सी थी, फिर से यहाँ पे हमने लिख लिया उसको। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कंडीशन फॉर ट्रापेजॉइडल चैनल इज कंडीशन नंबर 1 इज इक्वल टू टॉप विथ डिवाइड बाई 2। टॉप विथ क्या है, बी प्लस 2 जब डी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड बी अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या आई हमारी, सेम जो कि उसमें आई थी डेप्थ बाय 2 रेक्टेंगल में, उसमें भी कितनी थी, आर इज इक्वल टू डी बाई 2। ये दो कंडीशन याद रखेंगे। अब हम एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, आप देखोगे कितनी आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा अगर आपको सिर्फ ये दो कंडीशन याद रखनी है। अगर आपने दो कंडीशन याद रखे तो न्यूमेरिकल 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी वन न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल। देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पे, a trapezoidal channel is to be designed to carry discharge of 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 2.5 ये डिस्चार्ज है 2.5। डिजाइन द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन। मोस्ट एफिशिएंट बोलो या मोस्ट इकोनॉमिकल बोलो या बेस्ट सेक्शन बोलो, कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था तीनों का मीनिंग सेम है, मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट इकोनॉमिकल और कुछ भी बोलो। ठीक है, तो ये जो मोस्ट एफिशिएंट है ये वर्ड को आप अंडरलाइन कर लो, इसका मतलब न्यूमेरिकल अलग तरीके से सॉल्व करना है जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ बेड स्लोप ऑफ 1 इन 1200। बेड स्लोप आपको दिया हुआ है 1 इन 1200 एंड साइड स्लोप 2 वर्टिकल टू 3 हॉरिजॉन्टल। साइड स्लोप भी आपको दिया है कि 2 वर्टिकल टू 3 हॉरिजॉन्टल है। यूज चेजिस फार्मूला, यहाँ पे देखो क्या बोला है, चेजिस फार्मूला यूज करो। चेजिस फार्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 55, तो हम चेजिस फार्मूले में जो सी है, ठीक है ना, जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसका यूज करेंगे यहाँ पे, चेजिस फार्मूला यूज करने बोला। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले आप डायग्राम बना लेना है ग्राफ। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बी और डी। आपको क्या पूछा है उसने, सिंपल डिजाइन करना। डिजाइन करना मतलब उसकी विड्थ और डेप्थ निकालना। ठीक है, डिजाइन का मतलब या डायमेंशन निकालने का मतलब है उसकी विड्थ या फिर डेप्थ निकालना। सो बी और डी कोई भी चीज को आपको निकालना है। ठीक है, विड्थ निकालो या डेप्थ निकालो। अब देखो सिंपल यहाँ पे आपको साइड स्लोप कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 वर्टिकल टू 3 हॉरिजॉन्टल। 2v इज इक्वल टू 2v इंटू 3h। ठीक है ना, 2v इज टू 3h। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि आपको डायरेक्टली 2 और 3 नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, जो वर्टिकल वाला पार्ट है ये हमेशा आपका 1 होना चाहिए। वर्टिकल शुड बी 1, वर्टिकल हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे वर्टिकल 2 है, आपको वर्टिकल 1 ही लेना है। अगर ऐसा 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो आपको उसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 1 कैसा बनाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो तो बाकी वाला जो बचा हुआ स्लोप है उसको भी आपको 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, बचे हुए पार्ट को। ऐसा नहीं कि हम इसको कर दिए इसको छोड़ दिए, इसको भी करना ही पड़ेगा। अगर इसको डिवाइड कर, क्या हो जाएगा, 2v डिवाइड बाई 2, तो 3h डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये भी हो जाएगा। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल शुड बी 1, वर्टिकल 1 ही होना चाहिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो वर्टिकल 1 हो गया, लेकिन ये कितना हो गया हॉरिजॉन्टल 1.5। ठीक है, तो ये जो था 2:3, ये हमने क्या किया, इसको 1:1.5 कर दिया। इसको हमको 1 करना था, क्योंकि ये बेसिक रूल है, 1 के बिना सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि आप हमेशा देखोगे फॉर्मूले में मैं इसको 1 और इसको z लिखता था हमेशा। ठीक है, इसलिए इसका 1 होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये 1 हो गया तो ये कितना हो गया हॉरिजॉन्टल 1.5। तो आपका जो z की वैल्यू है वो कितनी है 1.5 है। ठीक है ना, z की वैल्यू कितनी आई है 1.5 आई है। तो देखो यहाँ पे वर्टिकल 1 कर दिए, और आपका जो दिया है बेड स्लोप, बेड स्लोप कितना दिया है, देखो बेड स्लोप दिया है 1 इन 1200, तो इसको भी लिख दिए। सी यानी कि चेजिस फार्मूला में जो चेजिस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है सी इज इक्वल टू 55, और क्यू आपको 2.5 दिया हुआ है। साइड स्लोप कितना दिया हुआ है देखो, अब साइड स्लोप 2:3 था, लेकिन हमने इसको चेंज किए, वर्टिकल को 1 किए, तो साइड स्लोप कितना हो गया 1:1.5। तो साइड स्लोप कितना हो गया 1:1.5। तो ये जो 1.5 है हॉरिजॉन्टली, ये क्या हो गया हमारा z की वैल्यू, फॉर्मूले में जो z लगता है उसकी वैल्यू है। तो 1.5 हो गया z की वैल्यू। ठीक है, तो हम उन्हें z भी निकाल लिए, बचा निकालना क्या है आपको b और d।
यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एंड डी, ठीक है ना। बी मतलब विड्थ और डेप्थ, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विड्थ और डेप्थ किस तरह निकालेंगे, सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये दो कंडीशन बस याद रखो, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ये दो कंडीशन याद है तो न्यूमेरिकल 2 मिनट भी लगेंगे उसमें। देखो यहाँ किस तरह सॉल्व करेंगे, अप्लाइंग कंडीशन फॉर, जो हमने अभी देखो कंटिन्यूएशन में रखे हमने इसको, सेट की डेटा लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम, अप्लाइंग कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रापेजॉइडल सेक्शन। तो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रापेजॉइडल सेक्शन की कंडीशन सबसे पहली जो मैंने आपको बताया, बी प्लस टू जेड डी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू डी अंडर रूट वन प्लस जेड स्क्वायर। ये कहाँ से आई, जो हमने अभी डिराइव किए, ये डिराइव किया ना हमने दो कंडीशन, तो पहली कंडीशन लिख दी हमने, टॉप विड्थ डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन स्लोपिंग साइड। तो ये क्या थी, टॉप विड्थ डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन स्लोपिंग साइड, ये कंडीशन हमने लिख दी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू देखो यहाँ पे 1.5 है, तो हमने क्या किए, जेड की जगह लिख दिया 1.5, यहाँ पे भी जेड की जगह लिख दिया 1.5, ठीक है। तो ये इक्वेशन किस तरह बन गया, ये हो गया बी प्लस थ्री डी इज इक्वल टू टू डी अंडर रूट 2.5, है ना, इस तरीके से हो गया बी प्लस थ्री डी इज इक्वल टू टू डी इंटू 1.8। तो इसको सॉल्व करते करते अगर आप आओगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, बी प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 3.6 डी, इस फॉर्म में बन रहा है। फिर हमने क्या किया, डी डी है तो हम क्या किए, बी इज इक्वल टू ये थ्री डी को इधर सेंड कर दिया, तो 3.6 से माइनस में आ गया थ्री डी, यानी कि अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, बी इज इक्वल टू 0.6 डी, ये इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आपको क्या चीज़ मिल रही है, बी इज इक्वल टू 0.6 डी, ठीक है, ये आपको कंडीशन आपको मिल रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपने बी निकाल लिए, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला ट्रापेजॉइडल का क्या है, बी प्लस जेड डी इंटू डी, ये फॉर्मूला है ट्रापेजॉइडल का, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, बी की जगह हम क्या करेंगे 0.6 डी लिख देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ भी बी की वैल्यू है वहाँ पे 0.6 डी लिख देंगे, तो बी यहाँ पे एक ही बार है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0.6 डी लिख दूंगा, तो बी की जगह लिख दिया 0.6 डी प्लस जेड डी, जेड की जगह हम क्या लिख देंगे 1.5, क्योंकि जेड की वैल्यू कितनी है 1.5 क्वेश्चन में, आंसर ही आपको इसकी वैल्यू आपको पता ही है जेड की 1.5, ठीक है। तो ये 1.5 डी इंटू डी, ठीक है, इस फॉर्म में बन रहा है। तो अल्टीमेटली आपको एरिया किस फॉर्म में मिल रहा है, एरिया का क्या मिल रहा है 2.1 डी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया कितना मिल रहा है 2.1 डी स्क्वायर, ठीक है। एरिया की एक वैल्यू मिल गई आपको इक्वेशन में, एरिया का 2.1 डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्योंकि आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना, देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, चेजिस फार्मूला यूज करने बोला, और सी की वैल्यू 55 दिया, बोला चेजिस फार्मूला यूज करिए और 55 इसकी वैल्यू है, तो हमने चेजिस फार्मूला यूज की। चेजिस फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस, ठीक है ना, ये चेजिस फार्मूला है, देख चुके हैं हम लोग। तो सी अंडर रूट आर एस, सी की जगह हम क्या लिख देंगे 55, ठीक है, सी की जगह हम लिख देंगे 55, और आर क्या होता है हमारा डी बाई टू, कंडीशन नंबर 2 है ना, दिखा देता हूँ फिर से आपको, देखो कंडीशन नंबर 2 डी बाई टू, आर इज इक्वल टू डी बाई टू, तो ये हमारी कंडीशन नंबर 2 थी। आर की जगह हम क्या लिख देंगे डी बाई टू, और एस जो बेड स्लोप है वो 1/1200 क्वेश्चन में दिया है, देखो 1/1200 दिया है हमने डेटा में भी, इसको 1/1200 लिखा है, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई है अभी, बस इसको रखना है वैल्यूज को। तो v के फॉर्म किस फॉर्म में मिल रहा है हमको, अगर हमने ये सारी वैल्यू पुट किए तो v हमको मिल रहा है 1.12 डी रेस्ट पावर 1/2, डी अननोन है इसमें, डी हर जगह अननोन है, हमको डी सबसे पहले निकालना है। तो v क्या बन गया 1.12 डी रेस्ट पावर 1/2, ठीक है, इस फॉर्म में मिल रहा है डी। अब देखो यहाँ पे q इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है ना, हमको पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, सो डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिस्चार्ज भी दिया हुआ है 2.5, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5, सो डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2.5, एरिया और वेलोसिटी की वैल्यू लिखना है। तो एरिया की वैल्यू हमने जो इक्वेशन में निकाले कितनी है 2.1, और वेलोसिटी क्या है 1.12 डी रेज़्ड टू पावर 1/2, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट किए, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद डी क्या मिल गया आपको 1.05 मीटर, है ना। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो डी मिला इक्वेशन की मदद से, डी इज इक्वल टू 1.05, अगर डी 1.05 है तो बी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी इज इक्वल टू 0.6 डी है, हमने इक्वेशन निकाले ना, तो बी इज इक्वल टू 0.6 डी, तो 0.6 इंटू डी यानी 1.05, तो बी कितना आ गया 0.63, ठीक है। सो डी की वैल्यू आ रही है 1.05 मीटर और बी की वैल्यू आ रही है 0.63, तो हमने डायमेंशन निकाल लिए, विड्थ और डेप्थ दोनों चीज़ निकाल ली,
ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल था। न्यूमेरिकल भी आपने देखे बहुत सिंपल था। अब हमें ट्रायंगुलर का एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ट्रायंगुलर का देखिए डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लेंदी उसका डेरिवेशन है। उसकी आपको सिर्फ कंडीशन याद रखना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, उसका सिर्फ मैं आपको कंडीशन और न्यूमेरिकल बता देता हूँ। ठीक है, देखो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन में आप इसका डेरिवेशन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत लेंदी है। आप सिर्फ इसकी कंडीशन याद रखो। देखो ये ट्रायंगुलर सेक्शन है, मैं आपको बताया था इसको हाफ में डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, थीटा। ठीक है ना, ये एंगल थीटा बोलते हैं। बाकी सारी चीज़ इसकी जो साइड स्लोप है बिल्कुल सिमिलर है ट्रापेजॉइडल से। ये 1 वर्टिकल जेड हॉरिजॉन्टल, और ये डेप्थ, इसमें विड्थ जो है वो सिर्फ टॉप विड्थ होती है, विड्थ होती है टॉप विड्थ। हमने ट्राइंगुलर का भी एरिया, पैरामीटर और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, फार्मूले में हमने बनाए थे टेबल फॉर्म में, और सारे वैल्यूज आपको पता है इसकी। ठीक है ना, बस इसमें आपको तीन चीज़ें याद रखनी है जो नई है। देखो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर सेक्शन में जो थीटा होता है, ये जो एंगल थीटा है हाफ पोर्शन का, इसकी वैल्यू आपको लेना है 45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू लेना है आपको 45 डिग्री। दूसरी कंडीशन, जो z है उसको हमेशा आपको लेना है 1। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन जो याद रखनी है वो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू आपको लेना है d/2√2। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत सिंपल है, थीटा 45 z1। सिर्फ r की वैल्यू याद रखना है, r इज इक्वल टू डेप्थ डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, ये तीन कंडीशन अगर आप याद रख लोगे ट्राइंगुलर की तो बहुत ईजी है, आपको इसका डेरिवेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका देखो हम न्यूमेरिकल देखते हैं कितना ईजी है। अगर आपको तीनों कंडीशन याद है तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल टू कैरी डिस्चार्ज ऑफ पॉइंट 8.2 मीटर। देखो यहाँ पे डिस्चार्ज कितना है, 8.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड बेड स्लोप 1 इन 1200। आपको बेड स्लोप भी दिया है 1 इन 1200 विथ मैनिंग्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे छोटा सा चेंज है, चेजिस की जगह यहाँ क्या लिख दिया है, मैनिंग्स कांस्टेंट, और आपको एन की वैल्यू दिया है 0.016। ठीक है, यहाँ पे उसने चेजिस की वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है मैनिंग्स की वैल्यू। मैनिंग्स कांस्टेंट मतलब एन इज इक्वल टू 0.016। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, डेटा लिख लेंगे पूरा। उससे पहले एक डायग्राम रफ बना लेना। उसमें देखो 1 इंटू जेड, जेड हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, जेड की वैल्यू आपको 1 ही लेना है और डी की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर बोला है तो आपको मोस्ट इकोनॉमिकल वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले डिस्चार्ज को लिख लो, कितना 8.2, बेड स्लोप है 1 इन 1200 और एन की वैल्यू 0.016। ठीक है, साइड स्लोप आपको कुछ भी नहीं मेंशन है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन अगर मेंशन है तो ऑटोमेटिक जो जेड है वो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से Z1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर ट्राइंगुलर चैनल। तो हमने हमारे पास कौन सी थी, दो तीन कंडीशन है, इसकी याद कर लो। Z इज इक्वल टू 1, थीटा को 45 डिग्री लेना है तो Z कितना हो गया 1, और R की वैल्यू कितनी हमने निकाले थे, d/2√2। ये दो कंडीशन याद रखेंगे। अब देखो d/2√2 को अगर आप सॉल्व करोगे 1/2√2 करके तो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 0.533। ठीक है ना, 0.353 डी। ठीक है ना, इसको हमने बस इसको सॉल्व किया है ना, इसको कुछ चेंज नहीं किया, बस इसको क्या किया, डी को साइड में लेके गए। 1/2√2, 1/2√2 मतलब 0.353 और इसके बाद डी मल्टीप्लीकेशन। तो हमने इसको जस्ट एक लिख लिया ताकि आसानी हो, अदरवाइज आप d/2√2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको एक जस्ट साइड में इस तरह लिख लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो एक चीज, एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगुलर का हमने निकाले थे, कितना था, ZD²। ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पूरे डेरिवेशन निकाल के। तो एरिया इज इक्वल टू ZD², है ना, इतना आपको पता है। तो एरिया इज इक्वल टू ZD² और Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन 1, तो एरिया क्या हो जाएगा, D²। सिंपल, एरिया किसके बराबर हो जाएगा, D² के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरिया D² हो गया, फिर क्या बोला है उसने, वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आपको क्या बोला उसने, मैनिंग्स कांस्टेंट, यानी कि मैनिंग्स फार्मूला लगेगा और उसका एन की वैल्यू 0.016। तो मैनिंग्स फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू 1/n, r इज इक्वल टू 2/3, s इज इक्वल टू रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है ना, ये फार्मूला है। इसमें n की वैल्यू 0.016 है, r की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वैल्यू 0.53353 डी। ठीक है, r की जगह ये वैल्यू लिख दी। s की जगह हम क्या लिखेंगे, बेड स्लोप 1 इन 1200, तो 1/1200 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, सिंपल।
आर की जगह हमने ये पूरा लिख दिया। यहाँ पे रेस टू पावर में 2/3 होना था, बाय मिस्टेक लिखा नहीं है, ठीक है। ये पूरी कंडीशन हमने लिख दी है, पूरी वैल्यूज यहाँ पे 2/3 होना चाहिए था, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, 0.901 डी क्यूब। इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू हो जाएगी 0.901 डी क्यूब, ठीक है। वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया और एरिया का भी इक्वेशन आ गया। जब एरिया वेलोसिटी इक्वेशन मिल जाता है तो हमको क्यू के फॉर्म में उसको निकालना पड़ता है। तो क्यू क्या है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। क्यू हमारे पास गिवन है 8.2, क्यू की वैल्यू 8.2 रखेंगे, एरिया अभी निकाले डी स्क्वायर, और वेलोसिटी की जगह वैल्यू लिख देंगे। तो ये पूरा वैल्यू लिखने के बाद जो आंसर आ रहा है आपका डी का, वो किस तरह आएगा, 2.28 मीटर, ठीक है। डी कितना आ जाएगा, 2.28 मीटर, ठीक है। आपको इसमें विड्थ की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें विड्थ निकालना नहीं पड़ता है, ठीक है, सिर्फ डेप्थ निकालना पड़ता है। तो ट्राइंगुलर की जो डेप्थ आ रही है वो आ रही है 2.28 मीटर, ठीक है, समझ गया। तो ये था हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के बारे में। तो इसको हम यहाँ पे खत्म करेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन को। अगर आपको इसमें कुछ डाउट, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग याद से पूछ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।